So go to page 99 of the textbook, and I think this chapter was already started by Bhumika ma'am. Now, which topic did she complete that I want to know? Page 99, the first introduction part is there. Then the globe of the world, this globe of the earth is there. Below that, you have India, location, size, and area. So you tell me how much has been done. Yes. बेटा जितना हो चुका है ना उसका मैं बाद में रिवीजन करवाऊंगी. जो बिल्कुल ही नहीं हुआ ना, लेट्स डू दैट फर्स्ट बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग एंड दिस फुल चैप्टर इज इंक्लूडेड. रिवीजन में मैं आगे से वापस करवा दूंगी, लेकिन जो हो गया लेट अस नॉट रिपीट दैट थिंग एटलीस्ट. समझ में आ रहे? बाकी डाउट्स है तो मैं एंड में क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी. अच्छा, देन टर्न द पेज नंबर 100. इन दैट यू हैव द मैप गिवन टू यू, जिसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम दिखाया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. And you can see that the length and width of our country is shown. From Gujarat to Arunachal Pradesh, it is 2,933 kilometers. And from Kashmir to Kanyakumari, it is 3214 kilometers. And you can also see a dotted line, जो कि 82.5 डिग्री पे है. That is the standard meridian. राइट. स्टैंडर्ड मेरिडियन भी आई थिंक अगले पेज में आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा. यस और नो? ओके, आई कैन नॉट सी मुफद्दल. मुफद्दल, चेक योर वीडियो. Okay, now keep a pencil in your hand in case if there are any hard words or if there are any important words, key words है तो वो हम लोग underline करेंगे. So see to it that you have a pencil in your hand. Okay, let's start the reading portion. Below the map, page 100. Total area of India is 32.8 lakh square kilometers, and India ranks 7th in the world in terms of area. So, if we look at the whole of India, suppose this is our India, right? तो दिस होल पोर्शन, अगर आप ये पूरे एरिया को मेजर करोगे तो इसका पूरा एरिया है, उसका पूरा मेजरमेंट है 32.8 lakh square kilometers. This can be asked in MCQs or any 1 mark. Now I think you all know what is a square kilometer. Square kilometer किसको कहते हैं, पता है ना? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. But actually as per this area is concerned, ये जो इंडिया का पूरा साइज है ये वाला, इससे भी बड़ी there are 6 other countries. So far as size is concerned, India comes at number 7. तो 1 to 6 में कौन कौन सी countries है, it is given to us. Other 6 countries larger than India are Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia. ये 6 countries है और नंबर 7 पर आता है इंडिया. ओके, सो पॉपुलेशन वाइज इंडिया रैंक्स सेकेंड, एरिया वाइज और साइज वाइज इंडिया रैंक्स 7th. Okay, go to page 101. The land area of India lies in the south of Asia. Okay, now suppose if this is our earth, ठीक है? तो हमारे अर्थ में how many continents are there? Continents 7. There are 7 continents जिसमें से एशिया इज वन ऑफ देम, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आता है. और एशिया में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है हमारा इंडिया. ओके, तो अगर हम अर्थ को हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करें, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, एंड अगर ऐसे डिवाइड करें तो दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया लाइज इन द वेस्टर्न, सॉरी,
उल्टा हो गया. This is eastern hemisphere and this is western hemisphere, right? So India is located in the eastern and northern hemisphere of the world. और एशिया में अगर देखा जाए, इफ दिस इज एशिया, देन इंडिया लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया. समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एशिया में साउथ ऑफ एशिया इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. एम आई वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. नाउ सपोज इफ वी सी द लोकेशन ऑफ इंडिया, अगर ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया की बाउंड्रीज में क्या क्या है? हियर वी हैव अरेबियन सी, हियर वी हैव इंडियन ओशन, हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड हियर वी हैव हिमालयास. और यहाँ पर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा. ओके. हियर वी हैव चाइना, यहाँ पर तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर श्रीलंका, हियर अगेन अरेबियन सी. सो दिस इज हाउ इंडिया लुक्स लाइक so far as its location is concerned. Okay, let's read the same thing. The land area of India lies to the south in Asia. In the north, lofty mountain ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east direction. West to east मतलब यहाँ से यहाँ. Here we have lofty mountains. Underline the word lofty. और उसका meaning लिखो high. Lofty meaning high. That is why the commuting with Tibet and China is possible only through passes located at high altitude. Altitude meaning height. Again, underline the word altitude and write the meaning height. लिख रहे हो ना? Okay. Now, what happens that these are the Himalayas. Okay. अब हिमालयस के इस तरफ है इंडिया और इस तरफ है चाइना और टिबेट. So actually the mountains are very high, so it is very difficult to cross the mountain and go to the other country. लेकिन ये mountains के बीच में passes है. passes मतलब छोटे छोटे रास्ते हैं जहां से आप टनल, जिसको हम बोल सकते हैं, टनल एक्चुअली मैन मेड है, लेकिन ये जो passes है these are natural. नेचुरली माउंटेन के बीच में छोटी छोटी जगह है ऐसे, जिससे हम चाइना या तो टिबेट में जा सकते हैं, राइट? अदरवाइज गोइंग टू चाइना इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू वांट टू क्रॉस द हिमालयस. नो डाउट अभी तो एयरवेज बहुत डेवलप हो चुके हैं, सो दैट इज नॉट अ डिफिकल्टी एक्चुअली, बट इफ यू वांट टू ट्रैवल रेगुलरली देन दोस पासेस आर यूज्ड. ओके. Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west and Indian Ocean to the south of peninsular India. ये तो शायद आपको पता ही, अभी अभी हमने बात किया. Now what is the meaning of peninsula? Peninsula किसको बोलते हैं? No. Now this is the shape of India. तो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया इज अ पेनिनसुला. व्हाट डज दिस मीन? Peninsula is any place which is surrounded by water on three sides. Do we have water on three sides of India? What do we have in the eastern side? Which water? Which water body? ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन, right? So any body which is surrounded by water on three sides is known as a peninsula. Okay, ये याद रखना, ये डेफिनेशन में भी है. And what if the area is surrounded by water on all the four sides?
आइसलैंड नहीं, आइलैंड, एस इज साइलेंट, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा लैंड है विच इज वाटर ऑन ऑल द फोर साइड्स, देन इट इज नोन एज आइलैंड। बट इंडिया इज अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज वाटर ऑन थ्री साइड्स। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? यस। So Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west, and Indian Ocean to the south of peninsular India, जो हमें पता है। The sea is utilized as a waterway. तीनों तरफ पानी है तो obviously it will be used for transportation, right? Waterway means transportation. Even though the land routes are obstructed by surrounding mountains, India has accepted all cultural elements arriving from outside, and these have merged into Indian society. Now you can see the map given to you on this page 101. इंडिया हमें थोड़ा डार्क में दिखाई दिया है ना? तो आप देख सकते हो दैट इंडिया से दूर दूर तक लैंड रूट और सी रूट जा रहे हैं। यू कैन सी एट द बॉटम आपको बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन मीन्स एयर रूट एंड डॉटेड लाइन मीन्स सी रूट। ओके, तो जितनी भी स्ट्रेट लाइन है इंडिया इज कनेक्टेड विथ ऑल दिस कंट्रीज थ्रू एयरवेज, और जितनी भी डॉटेड लाइंस है इंडिया इज कनेक्टेड विथ ऑल दिस कंट्रीज थ्रू अ वाटर रूट बिकॉज वी हैव थ्री साइड सराउंडिंग वाटर। ओके, so these are the air routes and sea routes which are shown in the map. Can you understand the map properly, all of you? Yes. See the paragraph below it. Yes, Prithvi. ओके, इंडिया होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर अभी मैंने आपको समझाया था, याद है ना सबको? स्ट्रेटेजिक लोकेशन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेटेजिक एंड राइट द मीनिंग इंपॉर्टेंट। अब इंडिया का लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है दैट वी विल लर्न इन दिस सेम पैराग्राफ। हैव यू रिटन द मीनिंग? Yes, India holds an important location in Eastern Hemisphere and it has a strategic importance also. India is in the Eastern Hemisphere. Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in ancient times. ये आजकल का नहीं है, since ancient times. India has very good relations with all the foreign countries, right? India, oceans have contributed immensely. Immensely means lot of. Underline the word immensely and write the meaning लॉट ऑफ। ओशन की वजह से आजू बाजू के बहुत सारी कंट्रीज के लोग इंडिया में आते हैं और एंशियंट टाइम्स में भी आते थे। शायद अगर आपको 8th स्टैंडर्ड याद है तो वी लर्न दैट द अरब्स केम टू इंडिया, द पोर्टुगीज केम, द डच पीपल केम, द फ्रेंच केम, द ब्रिटिशर्स केम। याद आ रहा है कुछ पिछले जन्म का? हाँ, फर्स्ट चैप्टर में था, यस। सो यू नो दैट हाउ द फॉरेनर्स दे केम टू इंडिया स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस waterways. India had trade relations with East Africa, West Asia, South Asia and Southeast Asia since ancient times. सालों से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं with all these countries. India had developed cultural and commercial relations with them. Cultural and commercial. Commercial meaning business relations. उनके साथ ट्रेड करते थे. Okay, underline the word commercial and write the meaning trade relation. क्या बात कर रहे हैं साहब? गुड, चलो तो नो नीड टू राइट। So India developed cultural and commercial relations or trade relations with them due to her location. No country in Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Indian Ocean का सबसे ज्यादा पार्ट इंडिया से पास होता है, राइट? मेरीटाइम बाउंड्री, मेरीटाइम मतलब कोस्ट लाइन। अंडरलाइन द वर्ड मेरीटाइम बाउंड्री, पूरा अंडरलाइन करो मेरीटाइम बाउंड्री एंड राइट द मीनिंग कोस्ट लाइन। मतलब इंडियन ओशन के शोर पे जितने भी कंट्रीज है उसमें इंडिया का एरिया सबसे ज्यादा है। आई होप समझ में आ रहा है आपको? यस। 101। ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, the ocean is named as Indian Ocean.
क्योंकि इंडियन ओशन सबसे ज्यादा इंडिया को टच करता है, इसीलिए उस ओशन को इंडियन ओशन बोलते हैं. दिस इज द रीजन. ओके. Location of India across the international waterways is also important. With the opening of the Suez Canal in 1869, अभी इसको अंडरलाइन करो. Suez Canal in 1869. 1869 में सुएज कैनाल बना था. The distance between India and Europe has reduced by about 7,000 kilometers. पहले इंडिया को से यूरोप घूम के जाना पड़ता था. And just to show you in the figure, if this is Asia and this is Europe, तो एशिया में हमारा इंडिया है यहाँ पर. Okay, so now what happened that if we want to travel from Asia or from India to Europe, we had to pass like this, which was a very long route. But because of the opening of Suez Canal, यहाँ से हम directly travel करते हैं, and due to this, a distance of 7,000 kilometers has been reduced. उतना हमारा डिस्टेंस रिड्यूस हो चुका है. Okay, let's read the line again. किधर गया? Yes. Sea routes connecting East and Southeast Asia and sorry, with the opening of the Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe is reduced by 7,000 kilometers. Sea routes connecting East and Southeast Asia. Now I think you know what is East and Southeast Asia. है ना? ईस्ट किसको बोलते हैं, साउथ ईस्ट किसको बोलते हैं, पता है ना? दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट. ओके, तो यहीं से पास हो रहा है सुएज कैनाल. ओके, सो sea routes connecting East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. The circum-African waterway. Circum-African waterway मतलब जैसे आपको circumference आप मैथ्स में लर्न करते हो, you know what is circumference, है ना? तो just a minute. Now this is Asia, this is Africa. तो ऐसे जब आप ट्रैवल करते हो इसको बोलते सरकम वाटरवे, मतलब गोल घूम के जाते हो, ऐसे नहीं जाते हो. दिस इज स्ट्रेट, दिस इज सरकम वाटरवे. समझ में आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? ओके, so the circum-African waterway and Suez Canal waterway pass by India. Canada and USA can be reached through the same waterway by Strait of Malacca and the Pacific Ocean. मतलब ये सभी चीजें अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ज्यादा इजीली पता चलेगा. द सेम नेम्स, ये जो नेम्स यहाँ पर हमको दिए हैं कि सरकम अफ्रीकन वाटरवे, सुएज कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलाका, पैसिफिक ओशन, एक बार आप गूगल खोल के ये सब चीजें देखना विथ रेफरेंस टू इंडिया, तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑल दिस वाटर बॉडीज वो इंडिया को बाकी के कंट्री से बहुत क्लोज लाते हैं. द ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीजेस अ लॉट. आई होप आई एम क्लियर. समझ में आ रहा है ना? ओके, सी द लास्ट पैराग्राफ. India has contacts with many countries since many centuries. Century means how many years? 100 years. Okay. Goods and ideas are being exchanged since ancient times. Goods and ideas, हमारा कल्चर भी ट्रैवल होता है, हमारे प्रोडक्ट्स भी ट्रैवल होते हैं. Similarly, concepts of Upanishad, story of Ramayana and Panchtantra, थेराप्यूटिक मेथड्स. थेराप्यूटिक मेथड्स मतलब थेरेपी, ये जो योग है, मसाज है, ये सब इंडियन ओरिजिन से है. दीज आर ट्रैवलिंग थ्रू अदर कंट्रीज. इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम एक्सेट्रा कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको पता होगा, एक्चुअली ये 10th में हम डिटेल में करने वाले हैं कि इंडिया का सिर्फ प्रोडक्ट्स अगर आपको याद है तो इंडियन मसलिन, इंडियन ऑर्नामेंट्स, इंडियन कॉटन, इट वॉज वेरी फेमस, इंडियन स्पाइसेस. तो ये सभी तो फिजिकल चीजें हैं, ये तो कॉमोडिटीज है. इसके अलावा इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन आइडियाज, इंडिया के इन्वेंशंस, इंडिया के डिस्कवरीज, ऑल ऑफ देम आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस वाटरवेज. बिफोर सेंचुरीज, सालों पहले ट्रेन्स नहीं थे, एरोप्लेन्स भी नहीं थे, लेकिन बोट्स थे.
आपको पता है ना कि वास्को डी गामा कैसे बोट में आए थे इंडिया में, शिप में, है ना। तो बिकॉज इंडिया का लोकेशन ऐसा है, वाटरवे के थ्रू वो बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्ट कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन दैट नॉट ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स बट इंडियाज आइडियाज, कल्चर्स, discoveries, everything has spread in the world. I hope I am clear, Darshan. Yes, Darshan. India has an important location in South Asia. There are 29 states. अब ये 29 states में कुछ गलत लग रहा है? क्या गलत लग रहा है? ये स्पेशली आफ्टर दैट आर्टिकल 370 जो आपको पता ही होगा, है ना। तो अभी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। जब व्हेन दिस बुक वाज प्रिंटेड वी हैड 29 स्टेट्स, बट करंटली वी हैव 28 स्टेट्स। अगर 28 यस, अगर 28 लिखा है तो इट इज वेरी गुड, आपकी न्यू एडिशन है, मेरी लास्ट ईयर की बुक है। एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर रिटर्न? 7। वो हो गई अभी कितनी? 9। ओके, वी हैव 9 यूनियन टेरिटरीज। तो आपकी बुक में ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप चेंज कर लो। स्टेट शुड बी 28 एंड यूनियन टेरिटरी शुड बी 9। अगर दोनों में से किसी में चेंजेस है तो यू करेक्ट इट। There are 28 states and a national capital territory and 6 union territories in India. इसके बदले 9 यूनियन टेरिटरीज। नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली। दिल्ली को हम एज अ कैपिटल सेपरेटली भी काउंट करते हैं एंड एज अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो इट इज काउंटेड। तो अगर एमसीक्यू में या 1 मार्क में पूछा जाता है तो डोंट फॉलो द टेक्स्ट बुक, फॉलो दिस थिंग, 28 states and 9 union territories. Am I very clear, all of you? हाँ, तो दैट इज दिल्ली, है ना। दिल्ली इज काउंटेड सेपरेटली ऑल्सो एंड इट इज समटाइम्स काउंटेड एज अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। क्लियर? Okay, turn the page. India holds an important place in South Asia. There are 29, nahin, but 28 states, 1 national capital territory of Delhi, and 9 union territories. There is one box given to us. Telangana was created as 29th state. ऐसा लिखा है आपकी बुक में? अगर 29th स्टेट ऐसा लिखा है तो अच्छा, ओके 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 ओके, got it. Telangana was created as 29th state from its mother state Andhra Pradesh on 2nd June 2014. मतलब 2nd June 2000। ओके बेटा, 2nd June 2014 में क्या हुआ था? दिस was a combined state known as Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh was divided into 2 parts. ये नीचे का जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश ही रह गया, और ऊपर का जो पार्ट है दैट वाज नोन एज अ सेपरेट स्टेट known as Telangana. Okay, and this happened in 2014. Okay, Andhra Pradesh divided itself into 2 different states. Okay, any doubts? Any doubts? Okay, now comes the neighboring countries of India. हाँ बोलो पृथ्वी। Now comes the neighbors of India. India is a common land boundary with Pakistan and Afghanistan in the northwest. Okay, देखो, मैं जैसे जैसे रीड कर रही हूँ, I want you all to study the map given below also. Okay, before that you should be knowing the directions perfectly. ये तो एक्चुअली आपको पता ही है। Suppose if this is India, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, देन सब डिरेक्शंस, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड
southeast, this is northwest and southwest. Okay, ये क्लियर है आपके माइंड में डायरेक्शंस? Okay. Now based on this directions, I will read and you will study the map. आप देख के चेक करना कि जो स्टेट का लोकेशन दिया है वो मैप में बराबर है कि नहीं. ओके. इंडिया हैज अ कॉमन लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट. पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में दिख रहे हैं. ओके. विथ चाइना नेपाल भूटान इन नॉर्थ ईस्ट. चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ ईस्ट में है. एंड विथ म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है. ओके. प्लस वी हैव श्रीलंका टू द साउथ ऑफ इंडिया ऑल्सो. अभी चले जाओ नेक्स्ट पेज पे. पेज 103 पे चले जाओ. इन द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अवर मेरीटाइम नेबर्स. मेरीटाइम नेबर्स मतलब वी शेयर अ वाटर बाउंड्री. लैंड बाउंड्री नहीं है, वाटर बाउंड्री है. मालदीव शायद यहाँ पर नहीं दिखा है, लेकिन अगले पेज में हमने देखा मालदीव कहाँ पर है, वो पिंक कलर का. अच्छा यहाँ पर भी है. हाँ यस, मालदीव इज शोन ओवर हियर ऑल्सो, नॉट टू वरी. साउथ में देखो बेटा, इसी मैप में पेज 102 में श्रीलंका एंड मालदीव्स दे शेयर वाटर बाउंड्री विथ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम नेबर्स. ओके. इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको छोटा सा एक स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी लाइन, राइट? दैट एक्चुअली दैट line that is Park Strait and Gulf of Mannar. Okay. Then Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea. मैप में देखते रहना सब लोग. While Andaman Nicobar Islands are located in Bay of Bengal. Any doubts in these two paragraphs? Neighboring countries में कुछ doubt है? Okay, now there is one more information given to us. Indira Point, which was the southernmost point of India, was submerged in 2004 due to tsunami. With this, few islands of Andaman Nicobar were also submerged in the Indian Ocean. Now, 2004, आपका बर्थ हो गया था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था शायद. नहीं हुआ था. चलो, तो ये आपके बर्थ के पहले की बात है. दिस इज इंडिया. ओके. और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है ये वाला, दिस वॉज इंदिरा पॉइंट. लेकिन 2004 में क्या हुआ? देयर वॉज अ बिग सुनामी अकर्ड इन द रीजन्स ऑफ केरला एंड ड्यू टू दिस द पॉइंट वॉज सबमर्ज्ड अंडर द ओशन. तो अगर आपको पूछा जाए दैट विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो 2004 तक इट वॉज इंदिरा पॉइंट, बट नाउ इट इज कन्याकुमारी. Okay, today Kanyakumari is the southernmost tip of India. Any doubts? Indira Point was the place, एक प्लेस था जो इंडिया का southernmost टिप था. उसके आगे फिर इंडियन ओशन शुरू हो गया था और वो पॉइंट को इंदिरा गांधी के नाम से ट्रिब्यूट दिया गया था. ठीक है. लेकिन क्योंकि वो सबसे नीचे था, ये पॉइंट यहाँ पर था, तो सुनामी में क्या हुआ कि ये पूरा ओशन के अंदर चला गया. तो अभी इंदिरा पॉइंट जैसा कुछ है ही नहीं. अभी इंडिया में सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी. क्लियर पृथ्वी? ओके. नाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. अब ये एक्चुअली थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा एंड वी हैव नॉट सो मच ऑफ टाइम, बट दिस रीडिंग वर्क विल डू नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन आई जस्ट गिव यू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इंडिया का जो प्लेस है, इंडिया का जो शेप है, इंडिया का जो पोजीशन है, वो कैसे आया, दैट इज गिवन टू अस. नाउ बिफोर मिलियंस ऑफ इयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स, अर्थ तो ऐसा ही था, लेकिन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर टुडे? 7 कॉन्टिनेंट्स. मतलब ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स है जिसको जोग्राफर्स जो है, जो जोग्राफी स्टडी करते, वो लोग इसको कॉन्टिनेंट्स नहीं बोलते, वो लोग उसको बोलते प्लेट्स. देयर आर 7 प्लेट्स ऑन अवर अर्थ.
बट व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्म्ड, जब अर्थ का बर्थ हुआ, एट दैट टाइम पिक्चर कैसा था, ये अर्थ था एंड देयर वाज ओनली वन प्लेट, एक ही प्लेट था पूरे अर्थ में. देन व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द मोशंस. यस, ये हमने सेवेंथ में लर्न किया था, अगर आपको याद है तो. हाँ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दैट एज द टाइम पास मतलब एक दिन दो दिन नहीं, 100 years, 150 years, 200 years, धीरे धीरे क्या हुआ, दैट देर वॉज अ क्रैक इन दिस प्लेट. ये जो प्लेट है उसमें क्रैक हो गया. तो उसके बाद अर्थ कैसा दिखता था, इट वॉज लुकिंग लाइक दिस. एक प्लेट यहाँ पर और दूसरी प्लेट थी यहाँ पर. ठीक है, अब ये जो दो प्लेट्स है, दिस प्लेट वॉज नोन एज गोंडवाना प्लेट. इसको बोलते थे गोंडवाना प्लेट, और इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट. एक्चुअली ये सब रीड करेंगे, ये मैं अभी स्टोरी इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में पहले से पता चल जाए. तो देर वर टू प्लेट्स फाइनली, गोंडवाना प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. और ये जो गोंडवाना प्लेट है वो वापस उसमें क्रैक्स होने लगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये पहले एक था फिर अभी सात है, तो क्रैक्स तो होने ही वाले हैं. तो धीरे धीरे देर हैपन टू बी क्रैक्स. अब ये जो हमारा गोंडवाना प्लेट है ये मैंने अलग निकाल दिया, इसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो गए. ठीक है, और इसमें से वन पोर्शन इमर्ज टू बी इंडिया. दिस इज हाउ अवर इंडिया गॉट इट्स शेप एंड पोजिशन. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू, है ना? अब ये रीडिंग पोर्शन हम कल करेंगे. इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क यू कैन आस्क मी, एनीबडी, एनी डाउट्स? हाँ बोलो पृथ्वी.